بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین صدق اللہ العظیم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار صدق اللہ العظیم۔ بچوں میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ سر بہت سلو آواز ہے آپ کی۔ آ جاتی ہے، وہ میں نے صرف ابھی دعا ہی پڑھی ہے اور گلے کو بیٹا گرم کی ہے تو آواز آ جاتی ہے۔ اچھا، آج ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے اسلام کا عدالتی نظام۔ اسلام کا عدالتی نظام۔ ابھی جس بچے نے بولا تھا، کیا نام ہے میرے بیٹے کا؟ جی بیٹا، ابھی جو بچہ بول رہا ہے کیا نام ہے آپ کا؟ جی سر، طلحہ محبوب۔ طلحہ محمود۔ طلحہ، اس سے پہلے میرا بیٹا ہم نے جو پڑھا ہے آپ بتا سکتے ہیں ہم نے کون کون سا موضوع پڑھا ہے؟ کون کون سا موضوع ہم پڑھ چکے ہیں؟ سر اسلام کے ارکان پڑھے ہیں پہلے۔ اچھا، اور سر لاسٹ لیکچر میں نہیں تھا میں، وہ جمعے والے دن۔ اچھا 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 تو اس سے پہلے میرا بیٹا اور کوئی لیکچر اٹینڈ کیا تھا، اس میں کیا پڑھا تھا؟ سر اس میں وہ نماز کے بارے میں، زکوٰۃ کے بارے میں، روزے کے بارے میں، حج کے بارے میں۔ وہ تو وہی ارکان ہی میرا بیٹا ہو گیا نا۔ چلو خیر ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ اس سے پہلے ہم نے وہ قرآن پڑھا تھا، حدیث پڑھی تھی، ارکان، ٹھیک ہے، تھیم اس کا جو ہے، ٹھیک ہے۔ اوکے تو سر، فروا اوکے۔ ہم نے یہ پڑھ لیا نا، دا تھیم آف قرآن۔ جی سر، پڑھ لیا، لاسٹ لیکچر میں یہی پڑھا تھا۔ ہاں شاباش، ٹھیک ہے۔ اچھا، آج ہمارا جو موضوع ہے بس تھوڑا سا آپ کو نا ریلیٹ کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور اپنے آپ کو تازہ کرنا ہوتا ہے۔ تو آج ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے اسلام کا عدالتی نظام، اور اس میں ہم نے جو پوائنٹ ڈسکس کرنے ہیں وہ اگر آپ کے پاس قلم ہے تو لکھ لیجئے۔ اس میں ایک تو یہ ہے کہ اسلام کے عدالتی نظام میں مسلمانوں کا جو خصوصی کردار ہے وہ کیا ہے، یعنی کہ مسلمانوں سے پہلے بھی کسی قوم میں، معاشرے میں یا اسٹیٹ میں کوئی قانون تھا تو اس میں مسلمانوں کا کیا کردار ہے، کیا مسلمانوں نے اس میں اضافہ کیا ہے، اور قانون کا باضابطہ علم، یعنی مسلمانوں نے قانون کو بطور سبجیکٹ اور نالج کے جو ہے وہ لیا ہے، اور اس حوالے سے اس کے اوپر جو ہے نا وہ محنت کی ہے اور کتابیں بھی لکھی ہیں اور ادارے بھی جو ہے نا وہ بنائے ہیں۔ دوسرا اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ کوئی بھی عمل ہو اس میں نیت کی جو اہمیت ہے اس کا خصوصی جو ہے نا وہ کردار ہے۔ اس کے بعد ہمارا جو موضوع ہوگا وہ ہوگا ریاست کا تحریری آئین، یعنی کہ مسلمانوں نے سب سے پہلے ریاست کا جو ہے نا وہ تحریری آئین جو ہے نا وہ دیا، اور پھر عالمگیر بین الاقوامی یعنی کہ جو ضابطے تھے ان کو بھی جو ہے نا وہ مقرر کیا۔ اس کے بعد اسلامی قانون کی خصوصیات کیا ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ کسی ملک کے بھی قانون کو اس وقت تک بہتر کہیں گے کہ جب آپ اس کی خوبیوں کو دیکھیں گے، خامیوں کو دیکھیں گے، اور پھر آپ یہ کہیں گے کہ ہاں آنے والے حالات میں یہ جو ہے یہ بہتر جو ہے نا وہ رہنمائی کر سکتا ہے۔ پھر قانون کی فلسفی کیا ہے، ٹھیک ہے جی، یعنی کہ یہ ہم دیکھیں گے۔ پھر اسلامی قانون میں جو پابندیاں ہیں اس کا جائزہ لیں گے کہ آیا وہ واقعی ریئلسٹک ہے، کہ اس میں حکمت بھی ہے۔ پھر اسلام میں یہ دیکھیں گے کہ قانون سازی کیسی ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی، قانون سازی جو ہے وہ کس طرح کی جاتی ہے۔ اور پھر اسلام کے اندر انصاف کی فراہمی کا جو نظام ہے، یہ نہ ہو کہ کسی معاشرے میں کسی کو انصاف ہی نہ ملتا ہو۔ اس حوالے سے میں ابھی ایک کوٹیشن آپ کی نظر کرتا ہوں کہ دوسری جنگ عظیم میں جب برطانیہ جنگ میں انوالو تھا تو ایک وقت تھا کہ بڑی کرٹیکل پوزیشن تھی برطانیہ کی،
तो चर्चिल ने ये बात पूछी कि आया हमारी अदालतें जो है वो सही काम कर रही हैं, तो जवाब मिला जी। तो उसने कहा फिर हमें कोई फिक्र नहीं है और इंशाल्लाह जो है ना वो हम जीत जाएंगे। उसके बाद हम देखेंगे कानून की असास यानी कि बुनियाद और फिर उसमें तरक्की। ठीक है जी, जब हम ये सारी बातें कर लेंगे तो फिर हम अपनी गुफ्तगू का जो है ना या लेक्चर है उसका जो है ना फिर हम जायजा लेंगे। अच्छा जी, तो अब मैं अर्ज ये करता हूँ कि इंसानी मुआशरे में कानून का जो वजूद है वो कदीम ज़माने से मौजूद है, ऐसा नहीं है कि मौजूद नहीं है। हर नस्ल, खित्ते और इंसानों के हर ग्रुप में, शोबे में किसी न किसी हद तक इसका किरदार ज़रूर रहा है। लेकिन मुसलमानों का जो किरदार है वो इंतहाई काबिल कदर और भरपूर है। वो कैसे? वो ये कि पुराने लोगों ने तो अपने मखसूस कवानीन और ज़ाब्ते और रवैयात जो है वो बना रखी थी। उसमें अच्छी भी थी, बुरी भी थी, और जो ताकतवर था फिर उसका अपना ही कानून था। ठीक है जी, ये नहीं कि ये कानून जो है वो चल, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये कानून भी चलता। लेकिन मुसलमानों में एक ऐसी शख्सियत गुजरी है, इमाम मोहम्मद अदरीस यानी कि अशाफी, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह, उनका नाम तो अदरीस है लेकिन इन शाफी के नाम से जो है ना वो ज़्यादा मारूफ है। और ये 150 हिजरी में पैदा हुए, 204 हिजरी में वफात पाई। और अगर ईसवी के लिहाज से देखना चाहते हैं तो 767 ईसवी और 820 ईस्वी में जो है ना इनका इंतकाल होता है। अगर आप हिस्ट्री के तालिब इल्म है तो ये भी देखिए कि उस वक्त बनु उमैया की हुकूमत थी या बनु अब्बास की थी या कौन से हुक्मरान थे। तो इनसे पहले ये एक बतौर इल्म जो है कानून का, ये तस्वुर जो है वो मौजूद नहीं। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी जो किताब यानी कि तसनीफ की असूलुल फिक़ह, उसका किताब का नाम है, तो वो कानून की एक बाज़ाब्ता जो है ना वो इल्म के तौर पर मुतारफ की किताब। मतलब आज आप ये देखें ना, आपने बीएस में जो है ना वो एडमिशन लिया, बहुत सारे बीएस है, लेकिन आप ये देखेंगे कि बीएस आईटी की जो बुक्स है वो किसने और किसने पहले लिखी है, किसने इसको रवाई दी है। ठीक है, तो ऐसे ही कानून के ऊपर मुसलमानों ने बतौर इल्म सबसे पहले जो है ना वो कलम उठाया। और फिर उसके बाद इस इल्म को जो है ना बड़ा मर्तबा जो है ना वो हासिल हो। जाहिर है कि जिंदगी का कोई भी शोबा हो, चाहे हमारा घर ही क्यों ना हो, अगर आप अपना बजट बनाएंगे, आप अपने जो वसाइल हैं, जो मसाइल हैं है जी, उनको आप देखेंगे और उसमें एक ज़ाब्ता जो है वो मुकर्रर करेंगे, अपनी औलाद में कोई ज़ाब्ता मुकर्रर करेंगे, अपने कारोबार में तो कानून, और फिर कारोबार में लेन देन के हवाले से है जी, बहुत सारे जो मामलात हैं, तो उन सारों का जो हल है वो कानून के अंदर है। ठीक है, अगर आपने किसी से माल लिया है या किसी को दिया है तो वो कोई पैमाने और बट्टे मुख्तलिफ नहीं होंगे। जैसे आपने माल लिया है, अगर आपने कपड़ा जो है वो मीटर में लिया है तो मीटर में दें, गज में लिया है तो गज में दें, किलोग्राम में लिया है तो किलोग्राम में दें। और अगर यानी कि दूसरा को पैमाना है जैसे सेर सवा से, तो उसमें आप दें। ये ऐसे नहीं है कि लेने का पैमाना और है और देने का जो है ना वो और है। तो ये ज़ाब्ते जो है ना वो जिंदगी के हर शोबे में जो है ना ये हमें जो है ना ये मिलते हैं। तो इस्लामी उलूम में फिर उसूलुल फ़िक़ह जो उनकी किताब थी उसे बड़ा मर्तबा जो है ना वो हासिल हुआ। और ये जो किताब है बैक वक्त फ़लसफ़े कानून ज़ाब्ते का जो है ना ये सरचश्मा जो है ना ये रही है। तो कानून साजी के जो असूल हैं वो, और कानून के जो मतन की जो तशरीह है यानी कि कानून की जो असल जो इबारत होती है, जैसे कि असेंबली जो है ना वह कानून पास करती है और अदालतें उस कानून की जो है ना वो तशरीह करती हैं, और फिर कुछ कुव्वतें नाफिज़ा होती हैं वो उनको जो है ना वो इम्प्लीमेंट जो है ना वो करवाती हैं। तो ये एक कुव्वत जो है ना ये होता है। ठीक है जी, ये असेंबली कानून साजी करती है, फिर वो बिल पास होता है, कानून बनता है, अदालतों में जाता है, उसकी तशरीह होती है, फिर जनाब उसको कानून यानी कि जो इंतजामिया होती है या इदारे होते हैं पुलिस वगैरह, उसको फिर जनाब वो नाफिज जो है ना वो करते हैं।
تو یوں پھر یہ ایک پورا جو ہے نا یہ علم جو ہے نا یہ وجود میں جو ہے نا یہ آتا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ باقی جتنی پھر اس کے اندر قانون سازی ہوتی ہے تو کہنے پھر وہ اس درست کی جو ہے نا وہ شاخیں ہوتی ہیں، اور اس قانون کا جو اصل منبع اور جو سورس ہے وہ ہے قرآن مجید، وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ایک بات ہو گئی کہ قانون کا باضابطہ جو علم بطور علم کے طور پہ مسلمانوں نے جو ہے نا یہ متعارف کروایا، تو یہ مسلمانوں کا جو ہے نا اس حوالے سے جو ہے نا یہ خصوصی جو ہے نا یہ کردار ہے۔ تو آج کی ہماری نسل کو جو ہے نا یہ پتہ ہونا چاہیے کہ مسلمانوں کی یہ جو ہے نا یہ خدمات نہیں ہے۔ ٹھیک ہے آج مسلمان زبان ہے، لیکن یہ ہے کہ ہم علمی لحاظ سے ہم زوال کا شکار نہیں ہے، ہماری نیتوں میں کھوٹ ہے، اور اسی لیے عمل میں اور نیت کی جو اہمیت ہے اس حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ انما الاعمال بالنیات، تو یعنی کہ نیت اگر اچھی ہوگی تو اسلام کے اندر یہ ہے کہ اگر آپ نے اچھی نیت سے کوئی فیصلہ کیا یا اس میں سوچ بچار کی تو آپ کو ایک نیکی کا ثواب، اور اگر اس میں غلطی ہو جاتی ہے تو اس کا بھی جو ہے نا وہ نہیں، لیکن اگر صحیح کام ہوگا تو اس کا ثواب ملے گا۔ تو آپ وسلم کے اس فرمان کے بعد مسلمان قاضیوں نے بشروں نے کبھی بھی یعنی کہ جان بوجھ کر اور غیر ارادی طور پر سرزد ہونے والے جرائم کو ایک سطح پر لا کر فیصلے نہیں کیے، یعنی کہ یہ نہیں ہے کہ کسی نے اگر ارادتاً کیا ہے اور غیر ارادتاً کیا ہے تو اس میں جو ہے نا یہ فرق کیا ہے، یہی جو ہے نا اصل آپ یہ دیکھیں نا نیت کو سمجھنے کے لیے سڑک کے اوپر ایک گٹر کا جو مین ہول ہے وہ کھلا ہے، اب آپ نے وہاں کوئی رکاوٹ اکٹھی کھڑی کر دی ہے کوئی چیز، اس کے باوجود بھی کسی کو ٹھوکر لگتی ہے چوٹ لگ جاتی ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے صحیح نیت سے وہ رکاوٹ کھڑی کی ہے، البتہ وہ جس کو چوٹ لگی تھی اس میں شاید قسمت میں تھی یا شاید وہ جو ہے نا وہ دیکھ نہیں سکا، لیکن آپ کو اپنی نیت کا ثواب جو ہے نا وہ ضرور جو ہے نا وہ ملے گا۔ اچھا جی، اب ایک اور پوائنٹ ہے کہ اسلام نے سب سے پہلے ریاست کا جو تحریری آئین جو ہے وہ دیا، اس کو پڑھنے سے پہلے میں آپ کو اگزامپل دے دیتا ہوں تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آ جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ ہجرت کی تو مساق مدینہ جو ہے وہ وجود میں آیا، یہ آپ نے شاید پڑھا ہو یا سنا ہو۔ تو یہ مدینہ کا یا ریاست مدینہ کا وہ تحریری دستور تھا، صرف اسی کا تحریری دستور نہیں تھا بلکہ تحقیق کے مطابق دنیا کا سب سے پہلا جو تحریری دستور ہے وہ میثاق مدینہ ہے۔ عرف عام میں کہتے ہیں کہ شاید سن 1258 میں جو برطانیہ نے اپنا میگنا کارٹا تحریری دستور بنا وہ نہیں، تحقیق ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے کی ہے اور اس میں یہ ثابت کیا ہے کہ میثاق مدینہ جو ہے اس میں وہ سب سے پہلا جو ہے وہ دنیا کا تحریری جو ہے یہ دستور ہے، اور اس میں آپ یہ دیکھیں یہودیوں کے مسلمانوں کے، اور اگر کوئی صلح کرنی ہے آپس میں مثلا مسلمان گروہ کا کوئی ہے یا یہودیوں کے کوئی گروہ کا ہے تو وہ ان کے اپنی عدالتوں کے مطابق جو ہے وہ فیصلے ہونے ہیں، اور اگر کوئی وہ فیصلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دونوں یہود یا مسلمان آپس میں کوئی مسئلہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا فیصلہ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے، مدینہ شہر کو جو ہے وہ حرم کی حیثیت جو ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ اس میں جو ہے نا وہ تحریر ہے، اور اس کی تقریباً 48 یا تقریباً 52 شکیں جو ہے نا وہ بنتی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ یہ دیکھیں کہ ان کے اوپر وحی نازل ہوئی تو تقریباً 40 یعنی کہ کاتبانی جو ہے نا وہ وحی تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کو جو ہے نا وہ لکھا کرتے تھے، ٹھیک ہے جی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھیں کہ جس طرح قرآن مجید کو لکھنے کا ہے اور جو لکھتا دوسرا جو ہے وہ پڑھ کے جو ہے جو سناتا، تو اس طرح ان کے لکھنے کا بھی اور سننے کا بھی اور اس کو محفوظ کرنے کا جو ہے نا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے یہ انتظام کیا، اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کے لیے ایک ریاست کا ڈھانچہ جو ہے وہ کھڑا کیا، ٹھیک ہے جی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ریاست کا پھر ایک تحریری آئین بھی نافذ کیا جس کو ہم میثاق مدینہ کہتے ہیں۔ تو ابتدا میں یہ ریاست جو ہے یہ کہہ لیں کہ چند دیہات کے اوپر جو ہے یہ مشتمل تھی،
क्योंकि मदीना के अंदर बड़ी छोटी मोटी जो है ना वो बस्तियां थी, तकरीबन 72 गढ़ियां जो है उसके अंदर, या आप कह लें कि छोटे मोटे 72 गांव थे, यूं कह लें आप, ठीक है जी। तो उसमें जो है ना वो मौजूद थे और उनके ऊपर एक मुश्तमिल रियासत कायम की, और उस रियासत का कानून जो है उसको तहरीरी तौर पे आइन को जो है ना वो लिखा गया। और जब आप सल्लल्लाहु इस दुनिया से रुखसत हुए तो इस रियासत की जो हदूद है वो तकरीबन पूरा जजीरतुल अरब, इराक और फलस्तीन का इलाका भी जो है इसमें जो है ना वो शामिल था, ठीक है जी। उसके बाद फिर हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु के दौर तक तो 3 बर-ए-आज़म ताकर मुसलमानों की हुकूमत जो है ना वो फैल जाती है। तो आप सल्लम का जो तैयार करदा तहरीरी आइन है वो मुकम्मल तौर पर आज भी महफूज है, उसकी असल कापी आज भी मौजूद महफूज है। सबसे पहले इब्ने हशाम ने उसका जिक्र किया, और आज भी डॉक्टर हमीदुल्लाह साहब ने एक पूरी अल-वसाइक़ुल सियासिया जो है वो किताब लिखी, और उसके अंदर वो भी चीजें जो है वो मौजूद है, ठीक है जी। और इसी तरह हुक्मरान और शहरियों के जो हकूक हैं, कानून साजी और निज़ाम दिफा, गैर मुस्लिम शहरियों से सलूक है जी, और इसी तरह आप सल्लम ने मरदमशुमारी कराई और उसकी भी तहरीर जो है वो मौजूद है। तो ये सारा जो काम है इब्तिदा में, अगर मैं इसका आपको सन बताऊं तो ये 622 ईस्वी जो है ना उस साल से ये काम जो है ना ये होना शुरू हुआ, ठीक है जी। तो ये मैं यानी कि तहरीरी दस्तूर जो है उसका जो है ये जिक्र कर रहा था पहला। अब उसके बाद आप ये देखें कि इसी दस्तूर और आइन के अंदर हमें आलमगीर बैनुल अक़वामी जो कानून है उसका भी जो है ना ये हमें कुछ पता चलता है। देखते हैं कि वो कैसे, और मुसलमानों की इसमें जो है वो कंट्रीब्यूशन जो है ना वो क्या है। आप देखें कि जब से इंसान पैदा हुआ है तो जंग जो है वो बदकिस्मती से इंसानी मुआशरे का कमोबेश हिस्सा ही रही है। हजरत आदम आदम अलैहिस्सलाम के 2 बेटे जो थे हाबील और काबील, सबसे पहले जंग तो उन 2 भाइयों के दरमियान जब हुई थी, तो उसके बाद ये एक जहाँ भी इंसान है ये मामूल रहा है कि उनके दरमियान इख्तलाफ और जंग जो है ना ये होती रही है। और जब इंसान गुस्से की हालत में होता है, जब उसके ऊपर ये कैफियत जो है वो तारी होती है, तो फिर ये है उस वक्त उसकी अकल जो है वो इतना काम जो है वो नहीं करती, उसके ऊपर गुस्सा और इंतकाम जो है ना ये हावी होता है। बच्चों मेरी आवाज आ रही है? अरबा यस मेरी सर, आवाज आ रही है? यस सर। अच्छा अच्छा, ठीक है, थैंक यू ब्रदर, ठीक। अच्छा जी, तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि फिर वो कैफियत ऐसी होती है कि उस वक्त हमें यानी कि झगड़ा लड़ाई या इंतकाम हमारे ऊपर जो है ना ये सवार होता है, और जिंदगी और मौत का जो है ना वो मामला जो है ना वो बन जाता है कि जब तक जनाब मैं अपनी अना को तस्कीन न पहुँचा लूँ वो जो है ना वो अपने कंट्रोल में जो है ना वो आते नहीं है। अच्छा, जब 2 मुल्कों के दरमियान जंग छिड़ती है तो आपको पता है कि जंग करनी है या नहीं करनी, ये उस मुल्क के या 2 मुतहारब मुल्कों के जो सरबराह हैं वो जो है ना ये फैसला जो है ना ये करते हैं। अब यहाँ आप ये देखें कि मुसलमानों ने यहाँ क्या किरदार अदा किया है, और कानून को किस चीज को कानून का हिस्सा जो है वो बना दिया है। अब मुसलमानों ने ये किया है कि ये नहीं है कि अकेला हुक्मरान जो है वो फैसला करे, नहीं, बल्कि मुसलमानों ने पहली बार बादशाहों और हुक्मरानों ने जो मुंह से बोल दिया वही कानून है, तो इससे इस चीज को निकाला और इस दायरे से निकल कर बाकायदा कानून की शक्ल दी, और उन्होंने इस बैनुल अक़वामी कानून पर तफसीली मवाद आने वालों के लिए जो है ना ये छोड़ा कि ये नहीं है कि बादशाह उसकी मर्जी, नहीं, वो जो लोग अमायदीन थे, जो उनके यानी कि मेंबरान, वो फैसला करते कि कैसे, क्या रीजन हैं, क्या वजूहात है कि हमने अटैक करना है या हमने सुलह करनी है। फिर आप इस्लाम की तालीमात देखें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और फिर मैं यहाँ आपको हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह तआला अन्हु, और जब हजरत उसामा को रवाना करने लगे तो कहा कि देखो हरे भरे खेतों को बर्बाद ना करना, किसी सायादार दरख्त को ना काटना,
बूढ़ों को, बच्चों को, औरतों को न मारना, ठीक है। सबसे पहले उन्हें सुलह का कहना, अगर वो मान जाए तो ठीक है, फिर उनके सामने दावत पेश करना, इस्लाम पेश करना, ठीक है। आखिरी हरबा जो है ना वो जंग है। अब इन कवानीन की सूरत में आप ये देखें कि आज का जो जमाना है, यहाँ हम आप यही मुसलमानों का है ना कि अगर किसी मामले को हम नहीं पहुंच सकते तो इस्लाम का कसूर नहीं है, हमारी जिन्नों का। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि बूढ़ों को नहीं मारना, बच्चों को नहीं मारना, औरतों को नहीं मारना। अब आप मुझे बताएं, आप आईटी के स्टूडेंट हैं जी, आप बीएस करने के बाद या अभी किसी इब्तदाई उम्र में अपनी सलाहियत की बिना पे आपको फौज के अंदर कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, आप वहां जनाब ऐसे एक कमरे में बैठ के पता नहीं कितने ही मिसाइलों को ऑपरेट करते हैं, कितने ही ऐसे काम हैं जो रिमोट के मुतल्लक है, ठीक है। तो क्या ख्याल है, या एक जो खातून है जो आईटी का जनाब, तो वो तो कितनी ही हजार फौजों से जो है ना वो भारी है। फिर आज उस औरत या उस नौजवान को मारना, या उस बूढ़े को, वो बूढ़ा जो नौजवान बच्चों को ये बताए कि 100 बकरा है और 100 बंदा है, उसको खाना कैसे है, ठीक है जी। ऐसे जो लोग हैं, यानी कि जो तकनीकी मदद फराहम करते हैं, तो आज वो भी फौज की हिट पे होते हैं। मुखालिफ जो मुल्क है वो किसी मुल्क के अच्छे साइंसदान को टारगेट करता है, अच्छे इंजीनियर को टारगेट करता है, क्योंकि वो जो एक शख्स होता है या किसी अच्छे जासूस को जो है वो टारगेट करता है, वो एक बंदा जो है वो हजारों के ऊपर जो है वो भारी होता है। तो इसीलिए किसी भी हुक्म को सोच समझ के नहीं, कुछ चीजें ऐसी हैं कि आंखें बंद करके इस्लाम में उसके ऊपर जो अमल पैरा, मसलन गैब के मतलब जो चीजें हैं, अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबी व युकीमून अस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून, और कुछ ऐसी चीजें हैं कि जिनको जनाब बगैर किसी रिसर्च के जब हमें ये पता चले कि अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म है, तो उसके अंदर एक ही बात है, एक ही बात है, एक ही बात है, सवाए तस्लीम कर लेने के अलावा और कोई दूसरी बात नहीं है। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि यूं बादशाहों को भी जुबान को लगाम दी कि जनाब अकेले ही आप इतने लोगों की किस्मत का फैसला जो है ना वो आप कैसे कर सकते हैं। तो ये भी इस्लाम ने एक कहने के नॉलेज के अंदर जो है वो वसअत दी। अब इस हवाले से जिन हमारे बुजुर्गों ने जो है ना वो काम किया, आज भी उनके कारनामे जो है वो महफूज हैं। उनमें इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, इमाम औज़ाई रहमतुल्लाह अलैह, इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह, मोहम्मद अश-शेबानी, ये जो इमाम यूसुफ हैं शेबानी हैं, ये इमाम अबू हनीफा के शागिर्द थे। इमाम अबू हनीफा आज ये कह लें कि जैसे दुनिया का बिल गेट्स है ना, इसी तरह वो बड़े अमीर आदमी थे और उन्होंने अपनी दौलत को दीन के हवाले से जो है ना वो खर्च किया हुआ था। उन्होंने 40 बेहतरीन लोगों की, पढ़े लिखे लोगों की एक शूरा, एक कमेटी बनाई हुई थी, और उसमें कोई मसला होता तो उसमें पेश किया जाता, और फिर ये देखा जाता कि ये जो मसला है इसके कायदीन यानी कि हमायती कौन है और इसकी मुखालफत में कौन है। फिर ये नहीं देखा जाता कि वोटों के जरिए फैसला होता, नहीं, जो इसकी हमायत में है उनके दलाइल क्या है और जो इसकी मुखालफत में है उनके पास दलाइल कैसे हैं, फिर अक्सरियत और दलाइल की बिना पे उस चीज के बारे में जो है ना वो फैसला किया जाता। तो ये एक मुसलमानों का जो है ना इसी तरह के हवाले से वापसी का भी नाम आता है और बहुत से लोगों का। तो यूं फिर इस हवाले से जो लिटरेचर वजूद में आया उसको सियर यानी के अमल, बादशाहों का तर्ज अमल, उस हवाले से भी जो है ना ये किताबें जो है लिखी गई। और इस हवाले से सबसे पहली शख्सियत जिसने काम किया वो जैद बिन अली रहमतुल्लाह अलैह है, जिनका जो इंतकाल है 120 या गालबन 122 हिजरी में जो है ना ये होता है, ठीक है जी। तो ये आगे देखें कि इसी हवाले से किसी शहरा पर बचेती हो जाती है, ठीक है जी। तो सवाल ये फिर पैदा होता है कि रहजनों के खिलाफ पुलिस की जो है वो कार्रवाई जो है ना ये बुनियाद होगी या इसमें जंग का कोई जवाब जो है ना ये बनता है। तो मसलन ये है कि इस्लामी अदालत के अंदर जो है ना दो मुखालिफ फरीकों के जो हकूक और जिम्मेदारियां जो हैं वो दोनों को तस्लीम किया जाता है, ठीक है जी। आप देखिए आज अदालत लगती है
तो जो सच्चा है उसने भी वकील किया होता है और झूठा जो है उसने भी वकील किया होता है। और फिर जज जो है वो दलाइल को सामने रखते हुए, ये नहीं एक आदमी झूठा है, ठीक है झूठा है, तो ये है कि आप उसको खामखा ऐसे ही सजा देंगे, नहीं। अदालत जो है, जज जो है, वो जो है वो फैसला जो है ना वो करेंगे कि आया इसका वो जुर्म जो है वो किस नौइयत का है, ठीक है जी। तो फिर तो ये सब चीजें मैंने कहा कि बैनुल अक़वामी कानून के मुसलमानों ने ये भी रोक लगाई कि जनाब एक जो खलीफा है या हुक्मरान है तो वो अकेले ही जो है ना वो पूरी उम्मा की जो है ना वो किस्मत का फैसला जो है वो नहीं कर सकता, ठीक है जी। अच्छा, अब ये देखते हैं कि इस्लामी कवानीन की जो अमूमी खसूसियात, यानी कि वो खसूसियात जो इस्लामी कानून को जो है ना वो दूसरे कवानीन से या दूसरी अक़वाम के कवानीन से जो है ना वो मुमताज़ करता है। तो इस हवाले से जो है ना ये हम देखेंगे। अब ये है कि ये जो कवानीन है ये इंसानी ज़िंदगी के तकरीबन हर शोबे का जो है ना ये अहाता करते हैं। चाहे इसका ताल्लुक जो है वो हमारे मादी, यानी कि हम जो कारोबार करते हैं, जी मादियत है ना, कोई भी कारोबार करें तो वहाँ आपको पता है कि आजकल ऐसी भी कंज्यूमर अदालतें भी जो है ये बनी हुई हैं, है जी, जहाँ आप जाके जनाब किसी भी दुकानदार, किसी भी फैक्ट्री, किसी भी जाके जनाब बल्कि पोर्टल बने हुए हैं जी, अदालतें तो एक तरफ है, फौरन जनाब आप मैसेज करते हैं, शिकायत मिलती है, ठीक है। आप किसी अदारे के खिलाफ शिकायत करें, अभी आपके घरों में कोई IT फोन का मसला होता है या गैस का मसला होता है, तो उनकी जो ना वो वेबसाइट्स हैं या मेल है उसके ऊपर करें, जो 24 घंटे के अंदर अंदर जो है वो रिस्पॉन्स आता है, वो लिखते हैं जनाब, और फौरन जो है वो फ़ोन करने वाले या ये पहले तो ये होता था कि वो सुनते ही नहीं थे, लेकिन ये है कि वो उनके हेडक्वार्टर में जो है ना वो कंप्लेंट जो है ना वो चली जाती है। तो इसी तरह मादी हवाले से हमारा चाहे कोई भी बिजनेस हो तो उसमें ऊंच नीच जो है वो हो जाती है, तो उसमें हमने इंसाफ कैसे लेना है, और फिर इस तरह का जो है ना वो लोगों को कन्वे भी किया जाता है, और कहने के ऐसे उनको इन्फॉर्म करने के लिए अखबार के अंदर, टीवी के अंदर, तो उन्हें मुख्तलिफ तरीकों से जो है ना वो इन्फॉर्म किया जाता है। और इसी तरह हमारे जो दुनियावी मामलात हैं, हाँ जी, इनके हवाले से और रूहानी जो मामलात हैं वो भी, तो इस्लाम जो है इंसानी ज़िंदगी के इन तमाम पहलुओं को जो है ना वो एक ऑर्डर में, एक नज़म में जो है ना वो लाना चाहता है, और इस मकसद के लिए जो है वो कवानीन जो है ना ये मौजूद है। कवानीन बनते भी हैं, मतरूक भी होते हैं, यानी कि ख़त्म भी होते हैं, और फिर उनकी इस्लाह भी होती है, और फिर कुछ हंगामी किस्म के भी कवानीन है। मसलन मुहर्रम का महीना आया तो दफ़ा 144 की जो है वो नौबत आ गई, उसको 1 माह के लिए, 15 दिनों के लिए, 20 दिनों के लिए नाफिज किया, और उसके बाद जब हालात नॉर्मल हुए तो वो पाबंदी जो है वो उठा भी ली गई। तो आर्जी कवानीन का जो है ना ये भी उनका, यानी कि जैसा भी माहौल और ज़रूरत बनती है तो कानून के अंदर भी जो है ना इतना इर्तिका है या लचक है, उसी हवाले से जो है ना बा बाज़ औक़ात ये है कि मसलन ये आजकल कोविड है, तो हुकूमत आपको पता है कि लॉकडाउन भी लगा देती है, स्मार्ट भी लगाती है, तो इस तरह के कवानीन जो है ना ये चेंज इनमें होती रहती है। तो इस्लामी कवानीन के मुसव्वदों या मजमूओं में जो आगाज़ आम तौर पर हमें मिलता है, आप उसमें ये देखें अकीदा यानी मज़हब की इबादत और रसूम है, किसी बाब में भी हुक्मरान है या इक़्तिदार आला है, सारे आइनी जो मामलात हैं वो उसमें बात होती है। तो मैंने ज़िक्र किया इबादत के हवाले से, इबादत के अंदर भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमें ये, बल्कि उनकी जो भी बात है वो हमारे लिए कानून का दर्जा रखती है कि भाई सारी रात नौजवानों तुमने इबादत नहीं करनी, नींद भी करनी है, खाना भी खाना है, जिस्म को आराम भी पहुँचाना है, और फिर अल्लाह की इबादत करनी है, ठीक है जी। इसी तरह अगर किसी को माल दिया है तो ये नहीं है कि जनाब वो गरीबों के ऊपर ही खर्च करें, नहीं, तुम्हारा भी उसका ऊपर हक है, तुम्हारी औलाद का भी हक है, ठीक है। पहले उनकी खबर लो, बाद में जो है ना वो तुम खर्च करते फिरना। तो ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर माल दिया है तो वो नेमत तो तुम्हारे ऊपर नजर भी आनी चाहिए। तो इस हवाले से ये एक बात होगी। अच्छा जी, तो इसी तरह आप ये देखें कि ये भी कानून है कि जो इस्लामी मुल्क का सरबराह होता है वो इमाम है फिलहाज ओहदा, उसने मस्जिद में नमाज भी पढ़ानी है और इमामत का ज़िम्मेदारी भी और हुक्मरानी भी करनी है। लेकिन हमें और भी एक मिसाल मिलती है, कुरान ही से मिलती है, मैं आपको देता हूँ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की मदद के लिए
उनके भाई हजरत हारून अलैहिस्सलाम को जो है ना वो भी अल्लाह ताला ने नबी जो है वो डिक्लेयर कर दिया। मैंने नबी बोलना है, रसूल नहीं बोलना। रसूल जो है वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ही थे, नबी या पैगंबर जो है वो हजरत हारून अलैहिस्सलाम, ठीक है। उसकी वजह सिर्फ ये थी कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की जबान में लुकनत थी। इब्तदा में पता है ना कि जब वो फिरौन के बाप बच्चे थे तो उसने उनको दबाने के लिए कोयला रखा, तो बच्चे ने कोयला उठा के फौरन जो है वो मुंह में डाल लिया और यूं उनकी जुबान में वो लुकनत जो है वो पैदा हो गई। अब इसी कानून की किताब में आपको ज़कात का भी जिक्र मिलेगा, है जी, आपको नमाज का भी जिक्र मिलेगा, यानी कि इबादत का भी इसमें आपको जिक्र मिलेगा। इसी तरह इस मुसव्वदा कानून में आपको जो मुआहदाती आपके ताल्लुकात है, लेन देन करते हैं, है जी, कुरान कहता है कि जब भी किसी से कोई मामला करो तो उसको लिख लिया करो, ये चीज भी जो है ये आपको मिलेगी। इसी तरह जराइम की सजाओं के बारे में भी आपको इससे रहनुमाई मिलेगी। और मुमालिक के साथ जंग और अमन के हवाले से, जिसका मैं पहले जिक्र कर गया हूँ कि बैनुल अक़वामी क़वानीन और सफारत के हवाले से भी आपको इसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी किसी को सफ़ीर बना के भेजते तो ये देखते हैं कि इस सफ़ीर को उस मुल्क के कल्चर का पता है, उस मुल्क की ज़बान इसको आती है, वहाँ की बोदोबाद से ये वाकिफ है, तो फिर किसी शख्स को उस जगह जो है वो सफ़ीर बना के जो है ना वो भेजते और भी उसको जो है ना वो हदायत देते। इसी तरह कानून में विरासत के मामलात हैं, वसीयत के मामलात हैं। तो यूं इंसान यानी कि इंसान जो तरकीब है इसके अंदर जो अज्जा है बदन और रूह, दोनों अनासर जो है वो शामिल है। ये नहीं है कि हमारा जिस्म है और रूह नहीं है, बल्कि जिस्म और रूह मिलके ही जो इंसान बनता है ना। तो अल्लाह ताला ने बदन और रूह दोनों की आबियारी के लिए जो है ना ये सामान किया हुआ है। अच्छा जी, तो अब हुकूमत जो है वो अपने जितने भी उसके पास वसाइल हैं तो तमाम तवज्जो उसकी मादी मामला पर वो कर दे और रूह जो है वो बिल्कुल ही भूखी रहे, तो तब भी जो है ना वो मुआशरा जो है ना वो बेजान हो जाएगा। तो इन दोनों चीज़ों की तरफ, दुनियावी मामलात की तरफ और रूहानियत की तरफ जो है ना ध्यान देना जो है ना, और हमारा भी फर्ज बनता है इनफरादी तौर पे और इज्तिमाई तौर पे भी जो है ना वो फर्ज बनता है। और अगर रूह और बदन की गैर मुसावी नशोनुमा होगी, तरबियत होगी, तो इंसान जो है वो अदम तवाज़ुन का जो है ना वो शिकार हो जाएगा। ठीक है जी। तो अगर वो मादियत की तरफ ज्यादा उसका ध्यान गया तो फिर वो शकी और कल्ब हो जाएगा, उसको किसी गरीब के मामलात का जो है वो कतल जो है ना ये पता नहीं चलेगा। और इसी तरह अगर रूहानियत जो है वो गालिब आ गई तो बहुत से हकूक को जो है वो पामाल करेगा, अपने घर वालों के, अपने बच्चों के, अपने जीवो कारब के। तो इस्लाम ने हमेशा इसके अंदर जो है वो तवाज़ुन रखा है। अब इस्लामी कानून की एक और भी खूबी है जी, वो ये कि जिम्मेदारियों को बाहम लाजमो मलजूम करने पर जो है ना वो जोर दिया है। ठीक है जी। न सिर्फ इंसानों के बाहमी ताल्लुकात बल्कि बंदे के अपने खालक के साथ जो ताल्लुकात हैं उनमें भी जो है ना वो असूल जो है ना वो कार फरमा है। ठीक है जी। तो अल्लाह ताला ने इंसान को बड़ी सहूलत दी है। 24 घंटे में नमाजों के ऊपर हमारे कितने 24 मिनट लगते हैं, सिर्फ 24 मिनट पढ़ने के लिए जो है ना ये हमें चाहिए। ठीक है जी। तो यूँ ये है कि दुनियावी जो नियतों से हम इस्तेफादा कर रहे हैं तो फिर हमारे ऊपर ये जिम्मेदारी आयद होती है कि जिस जिस शख्सियत ने, है जी, और शख्सियत नहीं कहना चाहिए कि जिस हस्ती ने हमें इन नेमतों से जो है ना ये नवाजा है तो फिर उसका शुक्र भी तो भाई अदा करना चाहिए ना। लाइन शकर तुम लाजीदन्नकुम, उसका शुक्र अदा करेंगे तो फिर वो उसका वादा है कि मजीद जो है ये मैं तुम्हें जो है ना ये मैं अता करूँगा। अब ये है कि कानून की जो फिलासफी है ये क्या है, कानून की फिलासफी क्या है। तो इस्लामी कानून के अंदर आप ये देखें कि मुसलमान जो है हमेशा उसको वो काम करना चाहिए जो अच्छा है और उस काम से बचना चाहिए जो बुरा है। अच्छा, अब ये जो अच्छाई और जो बुराई होती है कुछ चीजें तो बिल्कुल हतमी और वादे हमें नजर आती हैं और बाद कात ये दोनों जो खसूसियात है इसकी निस्बत इक्वल भी होती है, थोड़ा बहुत फर्क होता है। तो इस तमाम सूरत हाल में
پھر عدالتی قوانین کو 5 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، کیا کہ جس میں تقریباً تمام اوامر اور نواہی جو ہے وہ آ جاتے ہیں۔ اوامر مین ہر طرح کے احکام اور نواہی ہر طرح کی پابندیاں، یعنی کہ کون سے کام ہیں جن کو کرنے کا کہا گیا ہے اور کون سے کام ہیں جن سے روکا گیا ہے۔ اچھا، اب جو حتمی اچھائی ہے وہ یقیناً فرض ہے کہ یہ کام کرو گے تو ثواب ہے، نہ کرو گے تو گناہ ہے، اور اس کی ادائیگی جو ہے یہ لازمی ہے۔ اور ہر وہ چیز جس میں اچھائی کا جو ایلیمنٹ ہے وہ غالب ہو، اس کی جو ہے وہ تاکید کی جاتی ہے۔ مثلا نماز کے اندر اسلام کے لیے بھلائی ہے، اسلام کے لیے نہیں مسلمان کے لیے بھلائی ہے، تو اس کے اندر تاکید موجود ہے کہ یہ کرو، اور نہ کرو گے تو پھر یہ ہے کہ ایک جزا کا تصور جو ہے نا وہ بھی دیا گیا ہے۔ اور ایسی چیزیں جن میں اچھائی اور برائی کے جو پہلو برابر ہے، تو دونوں خصوصیات یعنی کہ برابر ہو یا دونوں خصوصیات نہ ہو، تو انہیں پھر انسانوں کی مرضی پر جو ہے وہ چھوڑ دیا جاتا ہے کہ اگر وہ ان کا ارتکاب کر لیں، یعنی کہ اگر وہ کر گزریں تو ٹھیک، اور اگر نہ کریں تو اس کے اوپر جو ہے نا وہ ممانت نہیں ہے، پوچھا نہیں جائے گا۔ اور جن یعنی کہ کاموں میں برائی کا ایلیمنٹ جو ہے وہ غالب ہوگا تو ان کا کرنا جو ہے وہ قابل ملامت ہوگا، اور ان کے کرنے کی حوصلہ شکنی بھی کی جاتی ہے، اور ان کی سزا بھی جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے مقرر کی ہوئی ہے۔ اب ہم یہاں ایک اور پوائنٹ ہے کہ اچھائی اور برائی کی جو شناخت یا تعریف جو ہے وہ کیسے کی جائے، ٹھیک ہے۔ اب یہ ہے کہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، اور یہ ساری کی ساری جو کتاب ہے یہ خدائی کلام کے اوپر جو ہے مشتمل ہے، اور مسلمانوں کی یہ بڑی ہی جو ہے یہ متبرک جو ہے نا یہ کتاب ہے۔ تو اس میں ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ معروف کام جو ہے وہ کرو اور منکر کے جو ہے نا وہ قریب نہ جاؤ، یعنی کہ معروف کاموں کی طرف جو ہے وہ ترغیب دلائی گئی ہے، اور منکر کاموں سے جو ہے نا وہ روکا گیا ہے۔ تو برائی بھی پھر ایسی چیز ہے کہ جسے ہر کوئی کو جانتا ہے، اور ہر انسان جو اپنے سلیم رکھتا ہے تو اسے اس چیز کی برائی سے وہ منع بھی ہوتا ہے اور منع بھی کرتا ہے۔ تو یوں پھر اسلامی اخلاقیات کا جو ہے نا یہ ایک بڑا حصہ اس موضوع کے متعلق ہے کہ قرآن نے اگر کسی چیز کو برا کہہ کر اس کی ممانت کی ہے تو رائے عامہ اس سے اختلاف کرے، سارا ملک ساری اسمبلی مثلاً نشہ آور جو شروع بات ہے، یہ جوا کی جو ممانت ہے تو آپ دیکھ قرآن مجید نے اس کو حرام کیا ہے، اب ساری اسمبلی اس کو جو ہے نا وہ حلال نہیں کر سکتی۔ تو اس ممانت میں جو ہے نا وہ حکمت ہے کہ ہر وہ چیز نشہ، ہر وہ چیز جو ہماری عقل کو مفلوج کر دے، ہمیں حلال و حرام کی تمیز نہ رہے، اس کو جو ہے نا وہ حرام کیا ہے۔ شراب کی کو حرام کرنے کی وجہ وہ نشہ، ہر وہ آج کل لیکوڈ چیز یا کوئی ایسی چیز چاہے وہ سالڈ قسم کی ہو جس میں نشہ ہو، جو عقل کو مفلوج کر دے، جس میں ہمیں حلال و حرام کی تمیز باقی نہ رہے، تو وہ جو ہے نا وہ حرام ہے۔ آج بھی آپ بچے ہیں ماشاءاللہ، لیکن آپ کی تحقیق ہے کہ ہمیشہ جو نشہ آور چیز ہوتی ہے وہ سب سے پہلے انسان کے دماغی خلیوں کو جو ہے نا وہ تباہ کرتی ہے، یوں کہنا کہ انسانی ذہن کو مفلوج کرتی ہے۔ تو سب سے بڑی حکمت یہ ہے کہ جب وہ مفلوج کر دیتی ہے عقل اور دانش کو، تو پھر ظاہر ہے کہ انسان جو ہے وہ نارمل نہیں رہتا، پھر وہ کوئی بھی وہ کر گزرتا ہے۔ تو لوگ اب اس حوالے سے یہ ہے کہ یہ جو اسلام عظیم ترین جو قانون سازی کی جو حکمت اور بنائی ہے اس کے اندر، اور اسی پر اعتماد کا جو ہے وہ معاملہ ہے، جس سے دوسرے تمام جو معاملات ہیں اور اس حوالے سے ہمیں جو احکام اور فرامین جو ہے وہ ملتے ہیں، تو دراصل ان کے اندر افادیت اور حکمت کی جو ہے نا ایک عالمگیر اس کے اندر یہ وزن جو ہے نا وہ موجود ہوتا ہے۔ آج بھی آپ یہ دیکھیں نا کہ پگ کا جو گوشت ہے وہ اسلام کے اندر جو ہے وہ حرام ہے، تو یورپ نے آج اس کے اوپر تحقیق بھی کی ہے کہ دراصل
उस गोश्त के अंदर बहुत सारे ऐसे रेशे हैं कि जो इंसानी सेहत के लिए जो है ना वो मुضر है। अच्छा, अब बात आ जाती है पाबंदियां, जिसे मैंने नमाजी के हवाले से जो है वो जिक्र किया कि कुछ काम जो है वो ऐसे हैं कि जिससे हमें जो है ना वो इस्लाम रोकता है। तो हाँ, हजूर सल्लल्लाहु जो दीन हमारे लिए जो है ना वो लेके आए, तो उसने एक ऐसा नजरिया जो है ना वो मुतारफ कराया कि जो बुराई के रास्ते की तमाम पाबंदियों से ज्यादा जो है ना ये मौसर है, ठीक है। तो इंसाफ की फराहमी का पूरा निज़ाम ही कायम नहीं किया, बल्कि इसके अलावा इस्लाम ने अपने मानने वाले के जहनों में मौत के बाद, जी मौत के बाद जो मुआखजा होना है उसका भी, उसको जो है ना वो खौफ जो है दिलाया कि भाई बात ये है कि अगर तुमने रत्ती बराबर कोई नेकी की होगी उसका भी तुम्हें अजर मिलेगा, और जो तुमने रत्ती बराबर कोई बुराई की होगी उसका भी तुम्हें जो है ना वो अजर मिलेगा। और अगर तुमने अपने फराइज से यानी कि कोई रूगर्दानी की तो तुमसे जो है ना ये बात पुरस्त होगी, और इसकी खिलाफ वर्जी के अगर जो तुम्हें मौके हासिल हुए हैं, और लेकिन बात यह है कि इन मौकों को कौन चीज जो है वो बचाएगी, वो है सजा का खौफ, ठीक है जी। तो ये अजियत और जो नुकसान पहुंचाने से यूं फिर इंसान जो है ना ये बाज रहता है, और मुख्तलिफ उसको हीलों और बहानों से जो है ना वो तरगीब दे गई है। मुसलमान का हरामुन दमुहु मालुहु व इर्जुहु, और अगर किसी मुआशरे के अंदर उसका माल, उसकी इज्जत और उसका इर्जुहु व मालुहु, और इज्जत जो है वो महफूज रहे, तो यकीनन फिर उस मुआशरे के अंदर आप खुद देख लें कि किसी मुआशरे के अंदर हमारी अगर इज्जत महफूज नहीं है, हमारा माल महफूज नहीं है जी, तो फिर आप ये देखें कि उस मुआशरे के अंदर हम किस तरह जो है ना ये रह सकते हैं। तो हमें ये पहले ही तरकीब दी गई है कि इन चीज़ों का जो है ना कोई भी चीज़ तुमने अपने किसी मुसलमान भाई की उसकी इजाज़त के बगैर जो है ये तुमने नहीं लेनी, बल्कि यहाँ पर है कि ला यस्खर कौम मिन कौमिन असा अन यकूनु खैरन मिनहुम, कि कोई कौम जो है किसी दूसरी कौम का मजाक ना उड़ाए, कोई औरतें जो हैं वो दूसरी औरतों को जो है वो मजाक ना उड़ाएं, वला तलमिजू अनफुसकुम बि'सल इस्मुल फुसूक बअदल ईमान, और ईमान लाने के बाद कोई जो है वो किसी दूसरे का उल्टा नाम भी जो है ना वो न पुकारे। तो यूं इस्लाम के अंदर ये एक दोहरा तोहरा जो निज़ाम है, तो इसने आम शहरियों की तरह हुक्मरानों पर भी कानून का जो है ना वो इतलाक है। अभी कोई भी हुक्मरान ऐसा नहीं है कि किसी को किसी की इज्जत को जो है वो खामखा जो है वो पमाल करता फिरे। और ये जो है ये मादी कवानीन भी हैं और रूहानी कवानीन भी हैं। रूहानी इसलिए आके आप ये देखें कि आप बच्चे हैं, बीएस में पढ़ते हैं, अगर आपको इम्तिहान का खौफ ना हो तो फिर आपको पता है कि डिग्री भी नहीं मिलेगी और आप प्रमोट भी नहीं होंगे, और कल करा जो आपकी एजुकेशन है, आपके पास डिग्री नहीं होगी तो फिर आप सर्वाइवल जो है वो किस तरह कर सकते हैं। तो इसी तरह इंसानी जिंदगी है, उसे हर तरह अल्लाह ताला ने वबिल आखिरती हुम यूकिनून, आखिरत का पुख्ता यकीन है कि ये जो अल्लाह ताला ने मुझे जिंदगी दी हुई है ये तो चंद रोज़ा जिंदगी है, बिल आखिर मुझे अल्लाह के यहाँ जो है ना वो पेश होना है। तो ये एक ऐसा यानी कि खौफ है, या यूं कह लें या बात पुरस है कि वो जो है ना वो हम खुदा अकेला हो, लोगों के सामने हो, तब भी उसकी ये खौफ जो है उसे पता है कि मैंने अपने मालिक के हजूर पेश होना है, तो उस दिन जिंदगी का जो है ये सामना ना करना पड़े। तो ये थोड़ा सा मैं अब बताना था पाबंदियों के हवाले से। तो एक ऐसी ऐसी यानी कि खुदकार सिस्टम है कि कानून ने क्या करना है, हमें खुद ही पता है कि अगर मैंने ये काम किया तो मेरे मालिक ने जो है ना यहाँ बच भी जाऊंगा, तो रोजे क़यामत इसका हिसाब किताब तो देना ही पड़ेगा। वहाँ शहादतें बड़ी जो है ना वो स्ट्रांग होगी जी। तो अल्लाह ताला ने तो मेरी पूरी यानी कि एक्सबंदी की होगी, यूएसबी अल्लाह ताला के पास होनी है, और ये जो मेरे आज़ा है इस वक्त जो मेरे कंट्रोल में है, तो कल कला इन्होंने मेरे खिलाफ जो है ये गवाही देनी है। अब ये देखना है कि कानून साजी जो है ये इस्लाम के अंदर कानून साजी कैसे होती है। हाँ जी, हर कोई बंदा जो है वो कानून बनाता है नहीं,
पहली बात तो यह है कि हाकमियत आला और इक़्तिदार आला वो अल्लाह ताला का है, और खलीफा या हुक्मरान जो है वो अमानत के तौर पर जो है ना वो इसका इस्तेमाल करता है। और कानून के हवाले से ये है कि सबसे पहला हमारा सोर्स जो है वो है अल्लाह की किताब, उसके बाद है आप सल्लम की अहदीस, आप सल्लम की सुन्नत, और खिलाफत राशिदा के जो कवानीन है वो भी हमारी रहनुमाई करते हैं, ताबईन और तबा ताबईन। और आइमा कराम की जहाँ तक बात है, तो आजकल हम भी खुद भी मुफ्ती हैं। आज के जो हमारे उलमा और सुलहा हैं वो आज के ज़माने के लिहाज से वो मामलात है जी जिसमें कुरान और हदीस से हमें कोई रहनुमाई नहीं मिलती, या हालात और वाक़यात है जी आज के हवाले से, तो वो उलमा जो है वो हमारे उसके अंदर जो है ना वो रहनुमाई करेंगे, वो इत्तिहाद करेंगे। तो इस्लामी कवानीन जो है जिनमें अल्लाह ताला की तरफ से नाज़िल होने वाले अहकाम हो या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जहाँ वो फरामीन हो, तो उनकी पाबंदी जो है वो यकसा और सख्ती के साथ जो है वो हमने करनी है। उसमें हमारी कोई मर्जी जो है वो शामिल नहीं है, और इन फ़राइज़ की जो तादाद है वो ज़्यादा नहीं है, थोड़ी है। और कुछ बारे में महज नसीहत की गई है और बाकी मामलात में बड़ी छूट दी गई है। तो इस्लामी अहकाम के मुताले से हमें ये पता चलता है कि पहले दर्जे के जो यानी कि अहकाम हैं, जो जो फ़राइज़ हैं हमारे, उनकी तो तादाद चंद एक है, और जिनकी हमें नसीहत की गई है उनकी तादाद कदरे ज़्यादा है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं। अलबत्ता कुछ मामलात हैं जिन पर कुरान जो है वो खामोश है, तो उनमें जो है आज हम अपने लिए उन्हीं असूलों की रोशनी में जो है वो कानून साजी कर सकते हैं, और लोग कर भी रहे हैं। अगर किसी जगह को गलती है तो इस्लाम ने ये हमारी अपनी अक्ल और दानिश का जो है ना ये कसूर है कि शायद हमने उसका मुताला नहीं किया, या हम कानून साजी जो है वो बेहतर तरीके से जो है वो नहीं कर सके। तो इसमें यह है कि आज के उलमा हैं, स्कॉलर उलमा की जब बात होती है तो ये नहीं है कि मदरसे से पढ़ने वाले, उसमें जजेस भी हैं, वकला भी हैं, सभी लोग हैं जो कानून के जो है ना वो तालिब इल्म है। तो तशरीह पर इस्लाम के किसी की जो है ना वो इजारादारी नहीं है कि जनाब नहीं जो मैंने बात की है वही नहीं, गलत बात है। हर किसी की बात जो है वो सुननी चाहिए। तो हर शख्स जिसने फिर इस्लाम का गहराई के साथ मुताला किया है, तो ऐसे शख्स की राय को जो है ना वो वेटेज जो है ना वो दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आप ये देखें कि अगर कोई बीमार है तो वो किसी शायर से जो है ना वो इलाज नहीं करवाएगा, और वो शायर कितना ही अच्छा हो, लेकिन वो डॉक्टर के पास जाएगा। इसी तरह अगर आपने कोई कंस्ट्रक्शन करनी है तो आप किसी इंजीनियर के पास जो है ना वो जाएंगे। तो अगर कोई कानूनी मसला है तो आप इन दोनों के पास नहीं जाएंगे, आप किसी कानून के पास जाएंगे जो कानूनी मामलात को निपटाने की जो है ना वो सलाहियत रखता हो, और जो उसके पास है इसका जो है ना वो इल्म हो। तो किसी भी शोबे के बारे में उसके माहिर के सिवा किसी और की राय जो है ना वो कोई वक़्त और हैसियत नहीं रखती। इसीलिए आपसे ये कहा जाता है कि आप दीन को ठेके पे ना दें। अगर आपको कोई दीनी मालूमात जो है ना हासिल करनी है, और बीएस का तो ये मोनो मोटो ये है कि हम जो इस्लामियात पढ़ते हैं आप उसकी तहकीक करें, खुद मुताला कीजिए, कुरान पढ़िए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को देखिए, अहदीस को देखिए, है जी। तो फिर आप देखेंगे कि आपके अंदर इख्तलाफ नहीं आएगा, आप किसी मसलों को तरजीह नहीं देंगे। आज भी देखिए रमज़ान है, 8 तरावी भी है और 20 तरावी भी है। मैं सऊदी अरब गया तो मुझे ये पता चला कि 3 मसाजिद हैं जहाँ 20 तरावी जो है वो पढ़ाई जाती है, वो 8 भी पढ़ लेते हैं। वो 20 क्या है? बैतुल्लाह शरीफ, मस्जिद नबवी और मस्जिद कुबा, यानी कि बहुत से दूसरे मसाले के भी लोग हैं तो वह 20, लेकिन बाकी सऊदी अरब की तमाम मसाजिद में 8 रकत तरावी जो है ना वो होती है, और इसमें झगड़े वाली कोई बात नहीं। आपने 20 पढ़नी है 20 पढ़ लें, 8 पढ़नी है 8 पढ़ लें, कोई जो है वो जहन्नम में नहीं जाएगा, और ना कोई आपके काफिर होने का फतवा जो है ना वो कोई दे सकता है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वालों के खिलाफ कोई मुसलमान किसी दूसरे मुसलमान के खिलाफ फतवा नहीं दे सकता। ठीक है जी। तो ये जो है ना ये हमें कानून साजी के हवाले से जो है ना ये थोड़ी सी जो है ना वो रहनुमाई की गई है। अब एक और थोड़ी सी बात इसी हवाले से कि जिन मामलात में कुरान और सुन्नत जो है वो खामोश है, उस हवाले से क्या है फिर? उस हवाले से ये है कि कानून साजी इज्तिहाद के नतीजे में बढ़ने वाले किसी भी कानून को, इज्तिहाद जो है किसी भी ज़माने के उलमा का मुतफ़िक़ा फ़ैसला जो है वो हमारे लिए कानून की हैसियत रखता है। और एक ज़माने के जो उलमा हैं
وہ دوسرے زمانے کے علماء کے اتحاد کو کینسل بھی کر سکتے ہیں. مثلا آج سے 100 سال پہلے ہم مسلمان علماء نے کو مل کے فیصلہ کیا تو آج کے جو علماء ہیں نئے زمانے اور حالات کی روشنی میں جو فیصلہ کریں گے تو وہ اس کو منسوخ کر کے نیا فیصلہ بھی جو ہے نا وہ لا سکتے ہیں. اور یہ ایک ایسی چیز ہے جو اسلام کی ہر زمانے میں آنے والے حالات کو جو ہے نا وہ سمجھتے اور سوچتے ہوئے آپ یہ دیکھیں کہ اس میں حل اس کا موجود ہے. اور جو اسلام جو ہے نا وہ فرسودگی سے بالکل اسی لیے بچا ہے کہ اس کے اندر لچک ہی ایسی ہے کہ کیسا ہی زمانہ آ جائے تو اس میں جو ہے نا آپ سروائیو جو ہے وہ کر سکتے ہیں. ایک تو اس حوالے سے آپ کو یہ بات جو ہے یہ عرض کرنی تھی. اب یہ ہے کہ انسان کی فراہمی کا جو نظام ہے یہ اسلام کے اندر جو ہے نا یہ کیسا ہے. تو اس حوالے سے آپ یہ دیکھیں کہ اسلام کا جو نظام ہے یہ انصاف کی پیچیدگیوں سے گنجلوں سے جو ہے نا یہ آزاد ہے. انصاف کی فراہمی جو ہے اس کی یہ ایک اہم خصوصیت ہے اس کی. مثلا آپ یہ دیکھیں نا کہ جو قانون شہادت ہے سخت اور غلطیوں سے پاک ہے اور روایتی طور پر ہر علاقے کی عدالت جو ہے یہ دفاتر وہاں ہمارے قانون میں تھانوں کے اندر جو مشتبہ وغیرہ لوگوں کا جو اندراج ہوتا ہے ٹھیک ہے جی تو مقامی مسلموں کی عادات اور کردار کا ریکارڈ جو ہے وہ رکھا جاتا ہے تاکہ بوقت ضرورت یہ معلوم ہو سکے گواہ کی ساکھ جو ہے وہ کیسی ہے, آیا اس کی شہادت قبول کی جا سکتی ہے کہ نہیں. اور یہ کام جو ہے یہ فریق مخالف پر تو نہیں چھوڑا جاتا کہ وہ دوسرے کی گواہی کو جو ہے ساکھ کو گھٹا کر پیش کرے. اور اس حوالے سے قرآن مجید کے اندر جو ہے نا وہ احکام بھی موجود ہے. اچھا اب یہاں جو ہے یہ میں نے آپ کے سامنے ایک اور یہ بھی کرنی ہے کہ اسلام کے قانون کے اندر غیر مسلموں کو بھی یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی عدالتیں یعنی کہ اسلامی حکومت کی اجازت روشنی میں قائم کریں اور ان کے جو معاملات اپنی عدالتوں میں جو ہے نا ان کے ذریعے جو ہے نا وہ حاصل کریں. یا یہ ہے کہ اگر اسلامی قانون سے وہ فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو وہ بھی ان کو سہولت حاصل ہے, لیکن ہمارے دین کے اندر یہ ہے کہ ان کے معاملات ان کے مذہب کے مطابق جو ہے نا وہ کرنے کی جو ہے نا وہ پوری کی پوری جو ہے نا وہ اجازت ہے. اچھا جی اب آپ یہ دیکھیں ہیں کہ اس حوالے سے پھر یعنی کہ مختلف چیزیں جو ہے اب میں ایک ایگزامپل آپ کے سامنے یہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ بعض معاملات میں بڑے ویژن سے جو ہے نا یہ کام لینا پڑتا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک بہن سے جو ہے نا شادی کر لی. تو جب خلیفہ نے دریافت کیا تو انہوں نے کہا کہ امیر المومنین میرے علم میں یہ نہ تھا کہ اس کی جو ہے نا یہ ممانعت ہو چکی ہے. تو خلیفہ نے پھر یہ ہے کہ دونوں میں علیحدگی کروا دی اور اس شخص سے اس کی بہن کو زر تلافی جو ہے نا وہ دلوایا ہے جی, یعنی کہ جو بھی کچھ جرمانہ یا جو اس کو, لیکن یہ ہے کہ اس کے اوپر زنا یا محرم سے نجائز تعلق کی بنا پر کوئی سزا جو ہے نا وہ ٹھیک ہے جی. تو اب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کے بعد جو سلسلہ جو ہے وہ رک گیا اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جو ہے وہ پردہ کر گئے تو پھر ہمارے پاس جو ہے نا جو قانون موجود تھا قرآن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی روشنی میں ایک ہم اس سے جو ہے وہ بدل لیتے رہے اور اسی کے بعد جو اتحاد کا جو راستہ ہے اس کو جو ہے نا یہ ہم نے اپنایا اور بہت سارے معاملات میں جو ہے نا یہ ہم نے جو ہے نا یہ کام جو ہے کیا. تو اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب عراق اور ایران کے اوپر قبضہ کیا تو وہاں جو ساسانیوں کا یعنی کہ نظام تھا مالیات اس کو برقرار رکھا اور اس کو جو ہے نا وہ بہتر جانا. لیکن جب وہ عراق کی طرف گئے شام کی طرف تو وہاں انہوں نے اس قانون کا جو ہے وہ مطالعہ کیا اور اس میں جو ہے وہ بڑی خامیاں دیکھی اور اس کو جو ہے نا وہ منسوخ جو ہے نا وہ کر دیا. اور یہ ہے کہ اس میں کچھ ترامیم اور بہتر کر کے اس کو جو ہے نا پھر باہر رکھا. تو اسلام کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ بہت سی اچھی چیزوں کو اڈاپٹ کرنے کی بھی جو ہے وہ صلاحیت ہے اور بری چیزوں کو جو ہے نا ان کی اصلاح کر کے اور ان کو بہتر کر کے جو ہے نا ان کو دوبارہ جو ہے نا وہ ان کو جو ہے نا وہ بحال کر دیا. اب ہمارے جو پہلے لوگ امام ابو حنیفہ اور یہ قاضی وغیرہ تھے تو وہ حکومت کی جو ہے نا وہ مداخلت کو
इस हवाले से कतन जो है वो नापसंद करते थे, और उन्होंने जो कानून साजी की या कानून के मुतालिक जो लिखा, तो वो बिल्कुल सियासी पाबंदियों से जो है ना उन्होंने आज़ाद होकर जो है लिखा। और इस हवाले से उन्होंने, मैं पहले भी नाम गिनवा गया हूँ कि इमाम अबू हनीफा, इमाम मालिक, इमाम शाफी, हाँ जी, मदीना में इमाम मालिक थे, शाम में उजाई थे, और जो है इमाम अबू हनीफा ये शाम और इराक के अंदर उन्होंने जो है ना ये बड़ा जो है ना ये काम किया। और फिर ये जो हमारा जो कानूनी मवाद है ये तकरीबन 3 बर्रे आज़म में जो है ना ये फैल गया, एशिया, अफ्रीका, हाँ जी, और यूरोप तक जो है ना, अब यूरोप तक ये जो है ना ये चला गया। तो ये सब चीज़ें जो है जो मैंने आपके सामने जो है ना ये करनी थी। तो इस हवाले से मुसलमानों की जो कंट्रीब्यूशन है वो दूसरी अक़वाम की नस्बत जो है ना वो बहुत ज़्यादा है। आज वो ये है कि हमने ये मेहनत करना और काम करना ये छोड़ दिया है, लेकिन फिर भी अगर आप आज फ़िक़्ह को पढ़ेंगे तो आप ये देखेंगे कि जिस बारीक बीनी के साथ मुसलमानों ने काम किया है, इसकी जो नज़ीर है वो दूसरों में जो है ना वो नहीं मिलती। अब आप ये देखें कि ये जो सारी गुफ्तगू मैंने आपके सामने की है, इसका मैं खुलासा जो है ये आपके सामने पेश करता हूँ कि इस्लामी कानून के अंदर मुमलकत और हुक्मरान जो करता है, तो इसमें कानून बनने का आगाज इस वक्त हुआ जब इस्लामी सल्तनत की हदूद बहुत ज़्यादा जो है ना वो फैल गई, और इसका दायरा इक़्तिदार जो है वो दायरे अक़ल से लेकर दायरे क़हर तक जो है ना वो वसी हो गया। तो फिर इस कानून में हर दौर और खिता के हालात से हम आन होने की जो फितरी सलाहियत है वह मौजूद है। बहुत सी अक़वाम को इस्लाम ने फतह किया, आप ये देखें कि वहाँ उनके मामलात का भी इसके अंदर जो है वो हालत मौजूद था। और ये एक इंसान के अंदर ऐसी क़ुव्वत मुशर्रका है जो इसमें जो है ना ये बहुत ज़्यादा जो है ना ये पाई जाती है। और यही जो ये सलाह बहबूद के बेहतरीन निज़ाम के तौर पर जो है ना इसकी जो है ये पहचान है। और ख़ुसूसन ख़ास तौर पर उन मुसलमान ममालिक में जो गिरोनी यानी कि इस्तेमारी ताकतों के गुलाम जो है ना इस्तेमाल के गुलाम रहे हैं, और इसके नतीजे में उनका जो अदालती निज़ाम है उन्होंने उसको अपनाने पे बेचारे जो है ना वो मजबूर हुए। लेकिन ये है कि यहाँ भी जो है ना अपने अदालती निज़ाम से जो है ना वो काम ला सकते हैं। तो वहाँ इस्लामी कानून की इस अमली खसूसियत से उन्होंने भरपूर जो है ना वो इस्तेफादा करने और शरीयत को जिंदगी के हर शोबे में लागू करने की तारीफ जो है वो जोर पकड़ी। आप ये देखें कि मुसलमान जो है वो कमजोर है, लेकिन हमारा लिटरेचर कमजोर नहीं है, हमारा ज़ाब्ता हयात कमजोर नहीं है। आज हम जिंदा हैं तो कुरान की वजह से, आज हम जिंदा हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की वजह से, आज हम जिंदा हैं तो हदीस की वजह से, आज हम जिंदा हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के ऊपर अमल पैरा होने की वजह से हम जो है ना वो जिंदा हैं। जब तक हम कुरान और सुन्नत को मजबूती से जो रखेंगे, चाहे अमेरिका, रूस, आप ये देख रहे हैं, शायद आपको पढ़ने का मौका नहीं मिला, वहां जिस शिद्दत के साथ जो है वो मुखालफत है, उसी शिद्दत के साथ इस्लाम को जानने की, इस्लाम को पढ़ने की जो तहरीक है वो जोर जो है वो पकड़ रही है। तो अब मेरी गुफ्तगू जो है खत्म हुई। आप बच्चों का भाई बहुत ज्यादा तावन कि आपने इतनी देर जो है वो मेरी गुफ्तगू को सुना, तो मैं आपको जो है वो खराज तस्लीम पेश करता हूँ। चला आपकी बर्दाश्त। तो अब मैं चाहूंगा कि इस हवाले से अगर आपके जहनों में कोई क्वेश्चन है तो आप जरूर कीजिए। इसके जो कंटेंट्स हैं या मैंने जिस जिस मौजू के ऊपर बोला वो मैंने आपको पहले उसकी तफसीर भी बता दी थी, और आखिर में मैंने उसका एक हल्का सा खुलासा भी आपके सामने पेश कर दिया। हाँ जी, फरवा कामरान, कोई क्वेश्चन है मेरा बेटा? नहीं सर। भाई क्वेश्चन भी किया करो ना। अच्छा आज आपने इतना अच्छा समझाया कि क्वेश्चन जी रहा ही नहीं देने में। सर, आप जो समझाते हैं समझ आ जाता है अच्छे से। आपको जज़ा दे भाई, मेरी कोशिश होती है मेरा बेटा, ये आपको क्रेडिट जाता है कि आप बात जो है वो तवज्जो से सुनते हैं। मैंने आपको कहा था ना कि हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक का ये कौल है कि जब तक दो जानों हो के ना बैठा जाए और तवज्जो तवज्जो ना हो, अकीदत ना हो, उस वक्त तक इल्म जो है वो समझ में नहीं आता। ठीक है, आप देखें ना कि जमीन के अंदर कुव्वत उगाई उस वक्त पैदा होती है कि जब हम उसको अच्छी तरह हल चला के नरम करते हैं, पानी देते हैं, तो फिर जो है वो बीज को उसके अंदर उगाने की सलाहियत होती है। अगर बच्चे की तवज्जो ना हो तो उस्ताद चाहे जितना मर्जी बीन बजाता रहे, बच्चों को समझ नहीं आती।
وہ اس کا کریڈٹ جو ہے نا وہ میں آپ ہی کو دیتا ہوں, آپ کی توجہ کو دیتا ہوں, اور آپ کی جو یعنی کہ ڈیووشن ہے اس کو میں دیتا ہوں. اچھا بہت شکریہ جزاک اللہ سر. ہاں ٹھیک ہے, کافی حاضری آپ نے لگا دی اٹینڈنس اپنے آپ نے یعنی کہ یہ چیٹ باکس میں. یس سر لگا دی. اچھا ہے کہ وہ اپنی حاضری لگا دے. ہاں بھی انیک احمد کو کوشچن ہے؟ کوئی نہیں ہے. سلام محبوب حسن, چلو ٹھیک ہے میرا بیٹا, پھر مجھے اجازت ہے. جی سر اجازت ہے, بہت شکریہ. اجازت ہے, بہت بہت شکریہ آپ کا. اب کب پیریڈ ہونا ہے پروا کامران, آپ کا پیریڈ اب کب ہوگا؟ سر ہمارا آپ کے ساتھ اب فرائیڈے والے دن ہے. ماشاء اللہ آپ کی بہتر وہ بڑا نا یعنی جو ہے تو ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی. میں جمعے والے دن. جی سر سر. آپ کٹ کٹ کے آ رہی ہے. جی بیٹا